اقوال ذریں حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو ہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باہمیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 1، ہجرت کے سال کا آغاز کب ہوا تھا؟ آپشن اے محرم 1190، آپشن بی صفر 1290، آپشن سی محرم 1390، آپشن ڈی صفر 1490۔ صحیح جواب ہے آپشن سی محرم 1390۔ سوال نمبر 2، حضرت محمد نے ہجری سال کا اعلان کہاں کیا تھا؟ آپشن اے مکہ میں، آپشن بی مدینہ میں، آپشن سی مسجد نبوی میں، آپشن ڈی طائف میں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی مسجد نبوی میں۔ سوال نمبر 3، اگر حلال اور حرام کی کمائی کو مکس کر کے صدقہ کریں تو کیا وہ قبول ہو جائے گا؟ آپشن اے قبول ہو جائے گا، آپشن بی قبول نہیں ہوگا، آپشن سی حرام ہے، آپشن ڈی گناہ ہے۔ صحیح جواب ہے سول حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ اللہ کریم پاک ہے اور پاک مال کو بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال کمائی بھر کے برابر صدقہ کرے اور اللہ پاک صرف حلال ہی کو قبول کرتا ہے تو اللہ پاک اسے داہنے ہاتھ میں قبول کرتا، یعنی راضی ہو جاتا ہے، پھر صدقہ والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے ایسے تم میں سے کوئی استے پھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حرام مال جمع کرے پھر اسے صدقہ دے تو اس میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں اور اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ سوال نمبر 4، اس جگہ کا کیا نام ہے جہاں حضرت محمد مدینہ آنے کے بعد پہلی دفعہ تشریف لے گئے تھے؟ آپشن اے دیدان، آپشن بی ودا، آپشن سی کوفہ، آپشن ڈی بصرہ۔ صحیح جواب ہے آپشن اے دیدان۔ سوال نمبر 5، حضرت امیر حمزہ کو پہلا اسلامی جھنڈا کس رنگ کا دیا گیا تھا؟ آپشن اے سرخ، آپشن بی سبز، آپشن سی کالا، آپشن ڈی سفید۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی سفید۔ سوال نمبر 6، حضرت محمد کی دعا کے بعد حضرت انس بن مالک کا کھجور کا باغ سال میں کتنی مرتبہ پھل دیتا تھا؟ آپشن اے 1 دفعہ، آپشن بی 2 دفعہ، آپشن سی 3 دفعہ، آپشن ڈی 4 دفعہ۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 2 دفعہ۔ سوال نمبر 7، مرد اور عورت کتنی عمر تک بچے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپشن اے 40 سال تک، آپشن بی 45 سال تک، آپشن سی 30 سال تک، آپشن ڈی 60 سال تک۔ صحیح جواب ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اولادہ عطا کرنا آنا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن طبیبیوں کے نزدیک مردوں کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت محمد کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے، لیکن مردوں کے لیے یہ کہ عورتوں کے مقابلے میں دیر سے شروع ہوتی ہے اور اس کی رفتار بھی است ہوتی ہے۔ مردوں کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں کی 40 سے 45 سال کی عمر کے قریب شروع ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس عمر میں بھی اولادہ عطا کر دیتا ہے، جب طبیبوں کے نزدیک اولادہ کا ہونا محال یعنی ناممکن ہوتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے، جبکہ بظاہر اس عمر میں اولادہ کا ہونا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بکن بھائیوں کو اولادہ کی نعمت عطا فرمائے جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ سوال نمبر 8، حضرت محمد نے کتنی بار حج فرمایا تھا؟ آپشن اے 1 حج، آپشن بی 2 حج، آپشن سی 3 حج، آپشن ڈی 4 حج۔ صحیح جواب ہے آپشن اے 1 حج۔ سوال نمبر 9، ابو جہل کی اس غزوہ میں ہلاک ہوا تھا؟ آپشن اے غزوہ احد، آپشن بی غزوہ بدر،
ऑप्शन सी गजवा खंदक। ऑप्शन डी गजवा हुनैन। सही जवाब है ऑप्शन बी गजवा बदर। सवाल नंबर 10। पाकिस्तानी में कितनी ज़बानें बोली जाती है? ऑप्शन ए 10 ज़बान। ऑप्शन बी 12 ज़बान। ऑप्शन सी 15 ज़बान। ऑप्शन डी 19 ज़बान। सही जवाब है ऑप्शन डी 19 ज़बान। सवाल नंबर 11। सेब किस मुल्क का कौमी फल है? ऑप्शन ए पाकिस्तान। ऑप्शन बी मिस्र। ऑप्शन सी जर्मनी। ऑप्शन डी इंडिया। सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी। सवाल नंबर 12। क्या घर में मौजूद नफली सदक़े की रकम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए जी हां। ऑप्शन बी जी नहीं। ऑप्शन सी जायज नहीं। ऑप्शन डी सख्त गुनाह है। सही जवाब है अगर नकल सदक़े की नियत से घर में रकम रखी थी कि ये रकम रा खुदा में खर्च करूंगा आ हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अल्लाह अलैहि की नियाज करूंगा, तो ऐसी सूरत में वो खुद इस रकम का मालिक है। इसके लिए बेहतर ही है कि जिसने काम की नियत से रकम रखी है इसमें खर्च करे, लेकिन अगर वो रकम अपने किसी काम में इस्तेमाल करता है तो भी कोई हर्ज और वो नहीं है। और अगर वो रकम फ़र्ज वाजिब सदक़े की हो, मसलन ज़कात फितरानी की, तो इस सूरत में कती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल नंबर 13। किस तरह सदका देने से बीमारी जल्द दूर हो जाती है? ऑप्शन ए जिंदा जानवर। ऑप्शन बी जानवर ज़बह करके। ऑप्शन सी नकद पैसों की सूरत में। ऑप्शन डी खाना पक्का के तकसीम करना। सही जवाब है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमाउल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जान का सदका जानवर है, कमरा मुर्गा वगैरह उन करके देना बेहतर है। चनांचे तावी रिजविया में है, हुमेरी मैनी मिली है खाना फुकरा को खिलाएं तो सदका है, और अकारिब यानी रिश्तादारों को खिलाएं तो सिला रहमी यानी रिश्तादारों से अच्छा बर्ताव है, और अहबाब को यानी दोस्तों को खिलाएं तो जियाफत यानी उनकी दावत है कि, और ये तीनों बातें यानी फ़कीर को खिलाना, रिश्तेदारों को खिलाना और दोस्तों को खिलाता मुजिब नुज़ूल रहमत यानी रहमत नाजिल होने ओ दाफे बिला ओ मुसीबत यानी बलाएं और मुसीबतें दफ होने का सबब है। मजीद फरमाते हैं यही हाल बिक्री ज़बह करके खुलाने का है, मगर तजर्बा हुआ सदका देना ज्यादा नफा रखता है, यानी बिक्री ज़बह करके खिलाएं तो ज्यादा बेहतर हुआ है कि जान का रहे और उससे बलाएं तेजी से जाती है। सवाल नंबर 14। अल्लाह को दुनिया के मकामात में से कौन सा मकाम पसंद है? ऑप्शन ए को तौर। ऑप्शन बी गार हिरा। ऑप्शन सी समंदर। ऑप्शन डी मस्जिद। सही जवाब है ऑप्शन डी मस्जिद। सवाल नंबर 15। हजरत मोहम्मद ने हजरत खदीजा को हक महर में कितने ऊंट दिए थे? ऑप्शन ए 20। ऑप्शन बी 25। ऑप्शन सी 30। ऑप्शन डी 40। सही जवाब है ऑप्शन ए 20। सवाल नंबर 16। सबसे पहले दुनिया से कौन सी मखलूक खत्म होगी? ऑप्शन ए इंसान। ऑप्शन बी जिन्नात। ऑप्शन सी शैतान। ऑप्शन डी टिड्डी। सही जवाब है ऑप्शन डी टिड्डी। सवाल नंबर 17। किस पानी से वुजू करना मना है? ऑप्शन ए गर्म पानी से। ऑप्शन बी कड़वे पानी से। ऑप्शन सी बारिश के पानी से। ऑप्शन डी इस्तेमाल शदा पानी से। सही जवाब है ऑप्शन डी इस्तेमाल शदा पानी से। सवाल नंबर 18। गुस्ल करते वक्त जिस्म पर कितनी मर्तबा पानी बहाना फर्ज है? ऑप्शन ए 1 बार। ऑप्शन बी 2 बार। ऑप्शन सी 3 बार। ऑप्शन डी 4 बार। सही जवाब है ऑप्शन सी 3 बार।
सवाल नंबर 19। फरीज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? ऑप्शन ए फालिज की बीमारी, ऑप्शन बी लकवा की बीमारी, ऑप्शन सी पेट फूलने की बीमारी, ऑप्शन डी पेट में कीड़े। सही जवाब है फरीज में आने को देर तक रखने से इसमें कीमियाई बदलाव पैदा हो जाते नूनगुन्ना में, जो कि आने के खीरा होने पर बैक्टीरिया का घर बन जाते हैं और खाने से आपकी सेहत पर मुतर असरात मुरतब होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि फरीज में रखे हुए आए की रोटियां और नान पराठे ठंडे होने पर इतना मज़ा नहीं देते जितना ताज़ा आने की रोटियां मज़ा देती है। माहिरीन कहते हैं कि पहले से गूंधा हुआ आना फरीज में जाने के बाद अपनी असली हालत पर नहीं रहता और फरीज की गैस के मुतलक ज़र्रात भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कि पेट फूलने और मैदे की खरियल का बाइस भी बन सकता है, जिसकी ज्यादती पर आपको पेट खराब होने और कै की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए 2 दिन से ज्यादा फरीज में आटा ना रखें। बेहतर यही है कि रोजाना की जरूरत का ताज़ा आटा गूंध कर इसे इस्तेमाल करें। इससे ग़िज़ाइयत भी भरपूर और इफादियत भी बेशुमार होती है। सवाल नंबर 19। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? सही जवाब है हजरत बातुल की। इस दुनिया में सबसे पहला इंसानी मुहतल हजरत बानत्तल का किया गया था। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने 2 कौवे को भेजा था। वो कौवे दोनों भाई थे, फिर दोनों कोने थे। ठीक है, एक ने दूसरे को बलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद जमीन की तरफ जोका और इसे खोदने लाम पर गड़े में कोने को तेरा और इसे दफन करके चमहा दिया। जब कातिल ने ये सब देखा तो पर उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कोने की तरह होने से भी आजिज हो गया कि अपने भाई की लाशी चाम। फिर कातिल ने करने की पैरवी करते हुए भाई को दफन करके छुपा दिया। सवाल नंबर 20। हजरत उमर ने हीरो और जवाहरात से बना हुआ ताज किस सहाबी को पहनाया था? ऑप्शन ए हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन बी हजरत बिलाल, ऑप्शन सी हजरत यूसुफ, ऑप्शन डी हजरत उस्मान गनी। सही जवाब है हजरत सराका बिन मालिक को हजरत सराका के लिए हुजूर में नाम की ये पेशगोई कि तुम एक दिन कसरा के कंगन पहनोगे। चश्म फलक ने फिर वो दौर भी देखा कि जब सईदना सराका बिन मालिक को सोने के कंगन पहनाए गए। सीरत सलाम में है कि खलीफा दुवम हजरत सईदना उमर फारूक के दौर खिलाफत में जब इस्लामी लश्कर के सिपा सालार सईदना साद बिन इब्बी वकास ने ईरान फतह किया और वहां का सारा माल तकीमत मदीना तैयबा अमीर अल-मोमिनीन की तरफ रवाना किया। सईदना उमर फारूक ने कीमती माल का जायजा लिया और कसरा के शहंशाह के सोने के कफन देखे तो सैयदना सराका बन मालिक मको तलब किया और कसरा के सोने के कंगन उन्हें पहनाए और हीरों जो एहरत से जड़ा ताज भी उन्हें पहनाया और फिर फरमाया, ए सराका बैन मालिक हाथ उठाओ और कहो तमाम तारीफें इस अल्लाह ताला की हैं जिसने ये चीज़ें कसरा से छीन लें जो ये दावा करता था कि मैं लोगों का रब हूं, और उससे ये चीज़ें छीन कर बनु मदलज के गरीब सराका बन मालिक को पीना दें। सवाल नंबर 20। किस सहाबी की शहादत पर फरिश्तों ने उनकी लाश पर अपने पर फैला दिए थे? सही जवाब है हजरत जाबिर कहते हैं, अहद के रोज मेरे वालिद अब्दुल्लाह बिन अमरत को कपड़े से ढक कर लाया गया। उनकी लाश का महल्ला किया गया था। मैंने उनकी मैयत से कपड़ा उठाना चाहा, लोगों ने मुझे मना कर दिया। हजरत मोहम्मद ने खुद कपड़ा उठाया, उनके हुक्म से उठाया गया। इस दौरान हजरत मोहम्मद ने किसी के रोने आ पीने की आवाज सुनी। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, कौन है? लोगों ने बताया, ईद की बेटी ईमान है। हजरत मोहम्मद ने इरशाद फरमाया, क्यों रोती हो? फरफ्ती उनकी मैयत पर अपने प्रों से बराबर सलीम किए रहे थी कि बहुत से कपड़ा उठा लिया गया। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है, किताब अल फजाइल बाब मन फजाइल अब्दुल्ले बिन उमरो बन हराम। सवाल नंबर 21। हजरत मोहम्मद सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? ऑप्शन ए बैंगन, ऑप्शन बी करेला, ऑप्शन सी कद्दू, ऑप्शन डी गोभी। सही जवाब है ऑप्शन सी कद्दू। सवाल नंबर 22।
کون سی چیز میاں بیوی کا نکاح نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ صحیح جواب ہے موت۔ جب موت آتی ہے تو میاں بیوی کا نکاح نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اقوال زریں حضرت علی نے ارشاد فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو اب کے اب جان کر بھی اب سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ اب کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔